اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا کے گانا سننے والوں اور گانا سننے والیوں، وہ اپنے آنکھوں سے دن رات موبائل پر ریلز دیکھنے والوں اور گندے ویڈیوز دیکھنے والوں، یہ آنکھیں بھی قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گی، یہ کان بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کے دن انسان کا کان اس کے خلاف گواہی دے گا، انسان کی آنکھیں اس کے خلاف گواہی دے گی، انسان کی چمڑی اس کے خلاف گواہی دے گی۔ وقال سائنس پڑھانے والوں اور میتھمیٹکس پڑھانے والوں اور وگیان پڑھانے والوں اور اتہاس پڑھانے والوں، میں تمہاری تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، تمہاری تعلیم تم کو مبارک ہو، یہ سائنس بھی تم کو کام آئے گی، یہ وگیان اور یہ جغرافی تم کو کام آئے گی، یہ اتہاس بھی تم کو کام آئے گا، مگر معاف کرنا جب قبر میں جاؤ گے، مرنے کے بعد جب منکر نکیر آئیں گے اور سوال پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، او میری پیاری ماں بہنوں، سائنس کی کتابوں میں ان تینوں سوالوں کا جواب نہیں ملے گا، میتھمیٹکس کی کتابوں میں ان تینوں سوالوں کا جواب نہیں ملے گا، جیوگرافی کی کتابوں میں ان تینوں سوالوں کا جواب نہیں ملے گا۔ ان تینوں سوالوں کا جواب اگر کہیں ملے گا تو یا تو رب کے قرآن میں ملے گا یا جناب محمد رسول اللہ کے فرمان میں ملے گا۔ ٹرکوں کے پیچھے جو بری نظر والے تیرا منہ کالا لکھا ہے، یہ صرف غیر مسلم ٹرک والے نہیں، مسلمان ٹرک والے بھی لکھواتے ہیں۔ یہ پیچھے جو جوتی لٹکی ہے، چپل لٹکا ہے، یہ مسلمان گاڑی والے بھی اپنے پیچھے لٹکاتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس سے نظر نہیں لگتی۔ تو بہرحال ایک ٹرک کے پیچھے میں نے ایک لائن دیکھی، وہ لائن مجھے بڑی اچھی تھی، اس پہ لکھا تھا سوچ کر دیکھو ساتھ کیا جائے۔ انسان اس دنیا میں کتنے شوق اور ارمان پالتا ہے، کتنی خواہشات ہیں جو انسان پوری کرنے میں عمریں گزارتا ہے۔ جو جھوپڑی میں رہتا ہے وہ حویلی کے سپنے دیکھتا ہے، جو حویلی میں رہتا ہے وہ محلوں کے سپنے دیکھتا ہے، جو مہینے کا 10,000 کماتا ہے وہ لاکھ کے سپنے دیکھتا ہے، جو لاکھ کماتا ہے وہ کروڑ کے سپنے دیکھتا ہے، جو کروڑ پتی ہے وہ ارب پتی بننے۔ انسان کی خواہشیں، انسان کی آرزویں، انسان کی تمنائیں کبھی ختم نہیں ہوتی میرے ساتھ۔ میں جب کار میں چل رہا تھا تو کبھی کبھی ہم لوگ ٹرکوں کے پیچھے دیکھتے ہیں کچھ چیزیں لکھی رہتی ہیں، اچھی بھی رہتی ہے بری بھی رہتی ہے، کبھی پیار محبت کی باتیں بھی ٹرک کے پیچھے لکھی رہتی ہے، کوئی دل جلا رہتا ہے من چلا ٹرک والا تو کچھ پیار محبت کی باتیں بھی لکھے رہتا ہے، کچھ لکھے رہتے ہیں بری نظر والے تیرا منہ کالا، کچھ جوتا لٹکائے رہتے ہیں پیچھے، کچھ پیچھے جو ہے وہ مرچی ٹانگے رہتے ہیں۔ تو پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ مرچی ٹانگنے سے، جوتا ٹانگنے سے نظر بس سے حفاظت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نظر نہ لگے تو آپ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے محفوظ کیجیے، صبح شام کے اذکار پڑھیے آپ، اور خاص طور سے اپنے بچوں کو آپ دعائیں پڑھ کے دم کیجیے، اور جہاں تک ممکن ہو بچوں کی تصویریں، ان کے فوٹوز سوشل میڈیا پر شیئر مت کیجیے۔ دنیا میں ہر آدمی آپ سے محبت کرنے والا نہیں ہے، حاسدین بھی ہیں، جلنے والے بھی ہیں، آپ سے نفرت کرنے والے بھی۔ بچے کو جب تیار کریں مائیں کاجل کا ٹیکا نہ لگائیں، وہ جہالت ہے، وہ غلط ہے۔ اپنے بچے کو نظر سے بچانا ہے، بچہ جب خوبصورت لگے اس کو دیکھ کے کہے ماشاء اللہ تبارک اللہ، اور یہ دعا پڑھ کے دم کیجیے اپنے بچے کو، وَأَعِيذُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ۔ یہ تمام چیزیں جب اس پر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ بھی نظر بد سے محفوظ رہیں گے، آپ کے بچے بھی نظر بد سے محفوظ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کا علم حاصل نہیں کرتے۔ اب یہ ٹرکوں کے پیچھے جو بری نظر والے تیرا منہ کالا لکھا ہے، یہ صرف غیر مسلم ٹرک والے نہیں، مسلمان ٹرک والے بھی لکھواتے ہیں۔ یہ پیچھے جو جوتی لٹکی ہے، چپل لٹکا ہے، یہ مسلمان گاڑی والے بھی اپنے پیچھے لٹکاتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس سے نظر نہیں لگتی۔ تو بہرحال
ایک ٹرک کے پیچھے میں نے ایک لائن دیکھی، وہ لائن مجھے بڑی اچھی تھی، اس پہ لکھا تھا سوچ کر دیکھو ساتھ کیا جائے۔ انسان اس دنیا میں کتنے شوق اور ارمان پالتا ہے، کتنی خواہشات ہیں جو انسان پوری کرنے میں عمریں گزارتا ہے۔ جو جھوپڑی میں رہتا ہے وہ حویلی کے سپنے دیکھتا ہے، جو حویلی میں رہتا ہے وہ محلوں کے سپنے دیکھتا ہے، جو مہینے کا 10,000 کماتا ہے وہ لاکھ کے سپنے دیکھتا ہے، جو لاکھ کماتا ہے وہ کروڑ کے سپنے دیکھتا ہے، جو کروڑ پتی ہے وہ ارب پتی بننے۔ انسان کی خواہشیں، انسان کی آرزویں، انسان کی تمنائیں کبھی ختم نہیں ہوتی میرے ساتھ۔ اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، کان کھول کر کے سن لو اے اللہ کے بندو، اللہ کے نبی کی سیدی سے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر آدم کے بیٹے کو سونے کے 2 پہاڑ بھی دے دیے جائے تو اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ اگر آدم کے بیٹے کو، انسان کو سونے کے 2 پہاڑ بھی دے دیے جائیں، لابتغى ثالثا، تو اسے تیسرے کی تمنا بھی ہو جائے گی، تیسرے کی آرزو بھی یہ کرے گا۔ ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور انسان کے منہ کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے، انسان کے پیٹ کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ جب تک انسان قبر میں نہیں چلا جائے گا تب تک انسان کے لالچ کا گھڑا نہیں بھرے گا، انسان کی خواہشات کا سلسلہ نہیں ٹوٹے گا، انسان کی آرزویں نہیں ٹوٹے گی جب تک انسان قبر میں نہیں چلا جائے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن کے 30ویں پارے میں کہتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے میرے بندو، کثرت کی چاہت اور کثرت کی طلب نے تم کو اللہ سے غافل کر دیا ہے، دین سے غافل کر دیا ہے۔ تمہاری زندگی کا ایک ہی مقصد اور ایک ہی مشن ہے، اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے۔ الہاکم التکاثر، اے میرے بندو، اس کثرت کی طلب نے تم کو غافل کر دیا ہے، اللہ سے غافل کر دیا ہے، رسول سے غافل کر دیا ہے، قیامت سے غافل کر دیا ہے، آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، جب تک تم قبروں کے اندر نہیں چلے جاؤ گے، جب تک تمہارے گھر والے تمہارے مرنے کے بعد تم کو قبرستان لے کر کے نہیں چلے جائیں گے، تب تک تمہاری یہ چاہت پوری ہونے والی نہیں، یہ تڑپ تمہاری ختم ہونے والی نہیں۔ کبھی غور کرو میرے پیارے ساتھ، ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ کسی شاعر نے بڑی سچی بات کہی، آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی۔ اچھا خاصا چلتا پھرتا نوجوان بائک لے کر کے نکلتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، صبح اس کے مرنے کی خبر آتی ہے۔ 15-16 سال کا لڑکا تالاب میں تیرنے جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، صبح اس کی لاش ملتی ہے۔ 25 سال کا 20 سال کا نوجوان ہٹا کٹا جم جاتا تھا، صحت مند غذائیں کھاتا تھا، اچانک بیمار پڑتا ہے، ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے ٹی بی ہے، معلوم ہوتا ہے کینسر ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی خطرناک بیماری ہے، 1 مہینہ بستر پہ رہتا ہے، اس کے بعد انتقال کرتا ہے۔ اس زندگی کا کیا بھروسہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، جس زندگی سے اتنی امیدیں لگا کر کے بیٹھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار ہمیں دنیا کی زندگی کی حقیقت بتاتا ہے۔ کہیں فرمایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، اے میرے بندو یاد رکھو، دنیا کی زندگی تو کھیل ہے، تماشا ہے۔ جب تک بچہ چھوٹا رہتا ہے، بچہ معصوم رہتا ہے، اس کی زندگی کا ایک ہی مشن ہے، وہ کھیلنا چاہتا ہے، وہ ٹائم پاس کرتا رہتا ہے۔ پھر وہ بچہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے،
12-14 साल का होता है, जब बुलूगत की दहलीज पर पहुंचता है, कुरान कहता है एलमु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबु व लहवुन। अब बच्चा थोड़ा जवान हो गया, अब खेल से एक कदम आगे बढ़ गया, अब तमाशा आ गया, अब इंस्टाग्राम के पीछे लग गया, अब फेसबुक के पीछे लग गया, अब लड़कियों से दोस्ती करने के चक्कर में पड़ गया, अब जवानी के मजे लेने के चक्कर में पड़ गया। उसके बाद फरमाया वज़ीनतुन, फिर और आगे बढ़ा, 20 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, अब जीनत का शौक, अब जीनत का शौक उसके अंदर पैदा हो गया। अच्छे कपड़े कैसे पहने जाएं, अच्छा हेयर स्टाइल कैसे बनाया जाए, लड़की बार बार आईने के सामने खड़ी होकर के मेकअप करने लगी, लड़का भी बार बार अपने सराफे का जायजा लेने लगा। जरा गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने एक आयत के अंदर पूरी इंसानी जिंदगी का साइकिल पेश कर दिया, पूरी इंसानी जिंदगी का जीवन चक्र पेश कर दिया। फरमाया एलमु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबु व लहवु व ज़ीनतुन। मेरे बंदो, तुम्हारी दुनिया की जिंदगी या तो खेल है, या तो तमाशा है, या तो जीनत है। फिर तुम और आगे बढ़ो, तुम 25 साल के हो गए, शादी हो गई, बिजनेस करने लगे, कारोबार करने लगे, व तफाखुरुम बैनकुम, अब एक दूसरे पर फख्र करने लगे, एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाहत पैदा हो गई। उसके पास एक मकान तो मेरे पास 2 मकान कैसे हो जाए, उसके पास 2 व्हीलर तो मेरे पास 4 व्हीलर कैसे आ जाए, उसके पास नॉर्मल कार है तो मेरे पास फॉर्च्यूनर कैसे आ जाए, डिफेंडर कैसे आ जाए, मेरे पास 2-2 करोड़ की 1-1 करोड़ की गाड़ियां कैसे आ जाए। व तफाखुरुम बैनकुम, फिर तुम एक दूसरे से फख्र करने लगे। व तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद, फिर तुम्हारे बच्चे बड़े बड़े हो गए, तुम पोते पोती वाले हो गए, नवासे भी तुम्हारे घर में आ गए, तुम्हारे बच्चे बहुत सारे हो गए, खानदान बहुत बड़ा हो गया। अब तुम अपने माल की और अपनी औलाद की कसरत में नाज करने लगे। यही है दुनिया की जिंदगी। खेल से शुरू हुई थी, बच्चे के खेल से शुरू हुई थी, और खत्म कहां पे हुई, इतने मेरे पोते हैं, इतने मेरे नवासे हैं, इतनी मैंने जमीन बनाई, इतनी मेरी जायदाद बनाई। और बना के क्या किया, अब वो ट्रक के पीछे जो लाइन लिखी थी वो लाइन याद करो, सोच कर देखो साथ क्या जाएगा, तुम साथ में क्या लेके जाओ। न तुम्हारे ये बच्चे तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम्हारी बीवी तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, तुम्हारे मरने पर बहुत आंसू बहाएगी, 4 महीना 10 दिन तक वो इद्दत में रहेगी, तुम्हारे एहतराम में अच्छे कपड़े नहीं पहनेगी, जीनत नहीं करेगी, अपने आपको घर के अंदर कैद रखेगी, इद्दत के अंदर रहेगी, तेरा यही एहतराम वो करेगी। लेकिन वो बीवी भी कब्र में अगर तुझे चाहे कि बीवी तेरे साथ जाए और कब्र में तेरे सवालों का जवाब दे दे और आखिरत की मंजिलों में तेरा सपोर्ट कर दे, मैं ऐ इंसान तेरी बीवी भी तेरे काम आने वाली नहीं है। हाँ, तेरे वो बच्चे जिनकी उंगली पकड़ करके तूने चलना सिखाया था, हाँ तेरे वही बच्चे जिनको पढ़ाने लिखाने के लिए तूने अपने आराम को कुर्बान किया था, हाँ तेरे वही बच्चे जिनको अच्छा लाइफ स्टाइल देने के लिए तूने हराम कारोबार भी शुरू कर दिया था, सूद और ब्याज का लेन देन भी तू करने लगा था, तूने रिश्वतें भी ली थी, तूने हराम कमाई भी अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए तूने ली थी। आज तेरे मरने का टाइम आया, तेरे बेटे तेरे बड़े वफादार हैं, अपने बाप की चारपाई के सामने खड़े, डॉक्टरों को बुलाया जा रहा है, डॉक्टर भी आकर के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दवाएं भी दी जा रही, इंजेक्शन भी लगाया जा रहा है, मगर है ऐ इंसान तेरी मौत का टाइम आ चुका है, अब कोई इंजेक्शन काम आने वाला नहीं है, अब कोई दवा काम आने वाली नहीं है, अब दुनिया का कोई मेडिकल साइंस, कोई डॉक्टर तुझे बचा नहीं सकता है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कुम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। मेरे बंदो जरा याद करो, जब तुम्हारी जान हलक तक पहुंच जाती है, जब तुम्हारी रूह के निकलने का टाइम आता है, तुम अपनी आंखों से देखते हो मरने वाले की जान निकल रही है, मरने वाला मर रहा है और तुम उसके करीब में बैठे हुए हो, और तुमसे भी ज्यादा करीब तो तुम्हारा रब उस मरने वाले से है। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हें ये लगता है कि कोई अल्लाह ताला नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई पावर नहीं है, कोई
कोई ताकत नहीं है, जरा मरने वाले को मौत से बचा करके दिखा दो, जरा उसकी रूह को निकलने से बचा करके दिखा दो, जरा उसकी जान को निकलने से बचा करके दिखा दो। तुम मौत से नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। इतना तरक्की कर चुका है इंसान, आईसीयू में पड़ा हुआ है। मौत का टाइम आया, दिल की धड़कन रुक गई, मशीन ने बताना शुरू कर दिया कि साहब अब इनका इंतकाल हो गया। डॉक्टर आके कहता है साहब हम बचा नहीं सके आपके मरीज, आपका बेटा आपसे बहुत मोहब्बत करता था, आपके मरने पर 4 आंसू उसने बहा दिए। मौलवी साहब को बुला करके मसले मसाइल पूछ लिए, किसी मौलाना साहब से जनाजे की नमाज भी पढ़वा दिया, आपको कफना भी दिया, आपको दफना भी दिया, आपको कब्रिस्तान में ले जाके अच्छी कब्र खुदवा करके कब्र में दफना भी दिया। लेकिन उसके बाद आपका बेटा भी हाथ झाड़ के मिट्टी दे करके चला जाएगा। वो बेटा जिस बेटे के लिए आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, ओ मेरे प्यारे भाइयों, कब्र के अंधेरे में वो बेटा भी आपके काम आने वाला नहीं है। बनारस से झारखंड जब हम लोग सफर करते हैं और जब पहाड़ी रास्ता आता है तो हमारे ड्राइवर साहब बेचारे परेशान हो जाते हैं, मौलाना बहुत डर लग रहा है, बिल्कुल जंगल का इलाका है, सुनसान इलाका है, गाड़ी यहाँ अगर कुछ हो गया तो यहाँ तो हमारी कोई खैरियत पूछने वाला कोई हालचाल पूछने वाला भी नहीं, जबकि हमारे पास मोबाइल भी है, हमारे पास दुनिया वालों से संपर्क करने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पर्स में पैसे भी हैं, हमारे पास अपनी मदद के बहुत सारे रास्ते हैं। ऐ इंसानों, तुम दुनिया में जब तन्हाई में होते हो, अकेले में होते हो तो तुम घबरा जाते हो। कभी ये गौर क्यों नहीं करते कि जब तुम कब्र के अंदर जाओगे, जब तुम कब्र के अंधेरे में जाओगे, बाप भी तुम्हारा छोड़ के चला जाएगा, बच्चे भी तुम्हारे छोड़ के चले जाएंगे, रिश्तेदार भी मिट्टी दे करके चले जाएंगे। उस कब्र के अंधेरे में कौन तुम्हें रोशनी अता करेगा? उस कब्र की काल कोठरी में कौन तुमको बचाएगा? अरे हम तो इतने पत्थर दिल हो चुके हैं कि मुर्दे को कब्र में दफनाते हैं और मिट्टी देते हैं, तब भी हम मौत को याद नहीं करते, तब भी अपने अंजाम को याद नहीं करते। उस्मान गनी को देखो, ये नबी के दामाद हैं और ऐसे वैसे दामाद नहीं है, इनके निकाह में नबी की 2 बेटियां आई हैं। ये रुकैया के भी शौहर है और रुकैया के इंतकाल के बाद उम्मे कुलसूम के भी शौहर है। पूरे इंसानी तारीख में, पूरे मानव इतिहास में अगर किसी के निकाह में किसी नबी की 2 बेटियां आई हैं तो वो सिर्फ एक इंसान है, उनका नाम उस्मान गनी है। उस्मान गनी जब किसी कब्र को देख लेते थे, जब कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे, सारों कतार रोने लगते थे। किसी ने पूछा, ऐ उस्मान गनी क्या बात है, तुम जन्नत की बात पे तो नहीं रोते हो, जहन्नम की बात पे तो नहीं रोते हो, कब्रिस्तान को देख करके रोने लगते हो, कब्र को देख करके रोने लगते हो। उस्मान गनी कहते हैं, ओ लोगों मैं क्यों ना रो, मैं क्यों ना आंसू बहाऊं? मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, इन्नल कब्रा अव्वलु मंजिल मिन मनाजिल आखिरा, बेशक ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जिसने इस मंजिल को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें आसान है, और जो इसको पार न कर पाया उसके लिए आगे की मंजिलें दुश्वार है। वमा रअयतु मंजरन अफज़ा मिनल कब्री, और ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैंने कब्र से ज्यादा खतरनाक कोई मंजर नहीं देखा, मैंने कब्र के अजाब से ज्यादा खतरनाक कोई मंजर नहीं देखा। आज उस कब्र में हम सबको जाना है, मगर हमें कोई चिंता नहीं। हमें मालूम है न हमारी चेकबुक वहां जाएगी, न बैंक का अकाउंट वहां जाएगा, न बच्चे वहां जाएंगे। वहां कौन सी चीज जाएगी? इब्राहिम खलीलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, क्या कहते हैं? यौमा ला यनफउ मालु वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ऐ अल्लाह, तू मुझे कयामत के दिन रुसवा न करना। ऐ अल्लाह, दुनिया में रुसवा हो जाएगा इंसान तो दोबारा इज्जत मिल जाएगी, दुनिया में जलील हो जाएगा दोबारा इज्जत पालेगा। ऐ अल्लाह, मुझे कयामत के दिन अपनी बारगाह में तू जलील न करना। वला तुख़ज़िनी यौम युबअसून। ऐ अल्लाह, मुझे कयामत के दिन तू रुसवा न करना, मुझे कयामत के दिन तू जलील न करना। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, जिस दिन न माल काम आएगा, न औलाद काम आएगी,
इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। कयामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा, जिस दिल में तौहीद होगी, जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी, जिस दिल में इखलास होगा, जिस दिल में कीना नहीं होगा, जिस दिल में कपट नहीं होगा। आज एक मदरसे का प्रोग्राम, मुझे नहीं मालूम कि आपके गांव में आपस में हो सकता है कुछ मसले मसाइल, मगर हमारे पास भी फोन आया, मौलाना आप बताइए प्रोग्राम में। तो 4 लोग प्रोग्राम करा रहे, पूरा गांव खिलाफ है। और अगर वाकई में गांव खिलाफ है तो क्यों है मेरे भाई? अगर एक गांव में एक मदरसा चल रहा है, बच्चियां पढ़ रही हैं, कुरान और हदीस की तालीम हासिल कर रही है, अगर उस पर भी किसी को एतराज है तो हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए मेरे साथ। हमें तालीम और बच्चियों की तालीम से अगर हमें नफरत है तो मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको अपने दिल का जायजा लेने, यही तालीम तो कब्र में हमारे बच्चों के काम आएगी, यही तालीम हमारी बच्चियों की कब्र में उनके काम आएगी। ओ साइंस पढ़ाने वालों, ओ मैथमेटिक्स पढ़ाने वालों, ओ विज्ञान पढ़ाने वालों, ओ इतिहास पढ़ाने वालों, मैं तुम्हारी तालीम के खिलाफ नहीं हूँ। तुम्हारी तालीम तुमको मुबारक हो, ये साइंस भी तुमको काम आएगी, ये विज्ञान और ये ज्योग्राफी तुमको काम आएगी, ये इतिहास भी तुमको काम आएगा। मगर माफ करना, जब कब्र में जाओगे, मरने के बाद जब मुनकर नकीर आएंगे और सवाल पूछेंगे, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? मन नबियों का, तेरे नबी कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, साइंस की किताबों में इन तीनों सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, मैथमेटिक्स की किताबों में इन तीनों सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, जियोग्राफी की किताबों में इन तीनों सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। इन तीनों सवालों का जवाब अगर कहीं मिलेगा तो या तो रब के कुरान में मिलेगा या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान में मिलेगा। और मदरसे में यही तो पढ़ाया जाता है, यही कुरान और हदीस तो पढ़ाई जाती है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब बंदा सही जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो फरिश्ता पूछता है, वमा युद्रीका, कि तुझे कैसे मालूम हुआ, तुझे कैसे पता चला इन तीनों सवालों का सही जवाब? तो बंदा कहता है, करा तो किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा था, मैंने कुरान को पढ़ा। मेरे प्यारे साथियों, आज हमें और आपको गौर करना चाहिए कि कब्र में कौन सी चीज हमारे काम आए। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। दुनिया की बादशाहत दुनिया में धरी की धरी रह जाएगी। कयामत का दिन होगा, रब्बुल आलमीन आवाज देगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, है मेरे बंदो किसके हाथ में आज बादशाहत है? दुनिया के बड़े बड़े वजीर आला, दुनिया के प्राइम मिनिस्टर, दुनिया के प्रेसिडेंट, दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान अल्लाह की अदालत में मौजूद होंगे और सबकी जबानों पर ताले लगे हुए होंगे, सब खामोश होंगे, किसी की जबान से कोई लफ्ज नहीं निकलेगा। अल्लाह ताला खुद ही आवाज देगा, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, मेरे बंदो आज अगर बादशाह है तो अल्लाह के हाथ में, आज पावर है तो अल्लाह के हाथ में, आज सल्तनत है तो अल्लाह के हाथ में, आज हुक्म चलेगा तो अल्लाह ही का चलेगा। कभी गौर करो मेरे प्यारे साथी, कयामत के दिन हमारा क्या हाल। आज जरा सी धरती हिल जाए, भूकंप आ जाए, जलजला आ जाए, नेपाल का जलजला आपने सुना होगा, होटल के अंदर जलजला आया, लोग होटल के कमरे छोड़ के भाग गए, लोग अपने मकानों, अपने फ्लैटों को छोड़ के भाग गए। अरे अल्लाह ने जरा सी जमीन को हिला दिया तो इंसान, तुझे अपने माल की हकीकत पता लग गई। तो फ्लाइट में सफर करता है, हवाई जहाज में सफर करता है और हवाई जहाज में ऐलान किया जाता है, अगर इमरजेंसी आ जाए, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो सामान की परवाह न करे, सामान की परवाह न करे, बाहर निकलने की कोशिश करे, एग्जिट की कोशिश करे, अपनी जान बचाने की कोशिश करें। आज है इंसान तो दुनिया के अजाब से, दुनिया की तकलीफ से बचने के लिए अपने माल की परवाह नहीं करता, दुनिया के मामूली ज़लज़ले में तो अपने माल की परवाह नहीं करता है इंसान, तो कयामत के दिन के ज़लज़ले को कैसे भूल सकता है? इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब पूरी जमीन को अल्लाह ताला हिला देगा, व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और जमीन अपने सारे बोझ निकाल देगी, वक़ालल इंसानो मा लहा, और इंसान कहेगा इस जमीन को क्या हो गया है? यौमइज़िन तुहद्दिथु अख़बारहा, और उस दिन जमीन बोलेगी, जमीन बात करेगी, जमीन गवाही देगी।
کیا نام ہے گاؤں کا؟ جرواڈی کی سرزمین پر آج یہ پروگرام ہوا. رات میں 12 بجے میں آپ کے درمیان آیا ہوں. مجھ سے لوگوں نے کہا مولانا جلدی چلیے. میں نے ڈھنگ سے کھانا تک نہیں کھایا, چائے کی طلب تھی, چائے تک نہیں پیا, میں جلدی سے چلا آیا. لوگوں نے کہا مولانا آدھی پبلک جا چکی, آدھی موجود ہے آپ کے انتظار میں ہے. میرے پیارے بھائیوں, آج جتنے لوگ اپنے کام دھندے کو چھوڑ کے, اپنے آرام کو چھوڑ کے, اپنے بستروں کو چھوڑ کے یہاں آئے ہیں, انشاءاللہ یہ جرواڈی کی سرزمین ان کے حق میں گواہی دے گی. یہ زمین بولے گی, یہ زمین بتائے گی اللہ یہاں پر تیرے بندے بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے, یہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا, یا حدیثیں پڑھی جا رہی تھی, یہاں آخرت کی باتیں ہو رہی تھی, یہاں قیامت کی باتیں ہو رہی تھی. یومئذ تحدث اخبارها, جس سرزمین پر کسی نے زنا کیا ہے, جس بیڈ روم میں جس نے زنا کیا ہے, وہ بیڈ روم بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گا, وہ کمرہ بھی گواہی دے گا, وہ کمرہ, وہ زمین بھی کل قیامت کے دن بولے گی. تم کس کس سے اپنا منہ چھپاؤ گے, تم کس کس سے بچ کے جاؤ گے. دنیا کی عدالت میں جھوٹے گواہ بھی آ جاتے ہیں, دنیا کی عدالت میں جھوٹے گواہ بھی آ جاتے ہیں, بے قصور کو سزا ہو جاتی ہے, اور جو قصوروار ہے وہ بچ جاتا ہے. لیکن اللہ کی عدالت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ منہ پر مہر لگا دے گا. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. میرے بندو, آج ہم تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے, آج تمہارے پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے, آج تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے. وہ اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا کے گانا سننے والوں اور گانا سننے والیوں, وہ اپنے آنکھوں سے دن رات موبائل پر ریلز دیکھنے والوں, وہ گندے ویڈیوز دیکھنے والوں, یہ آنکھیں بھی قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گی, یہ کان بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے. حتی اذا ما جاؤہا شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. قیامت کے دن انسان کا کان اس کے خلاف گواہی دے گا, انسان کی آنکھیں اس کے خلاف گواہی دے گی, انسان کی چمڑی اس کے خلاف گواہی دے گی. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا, اور انسان کہے گا اپنی چمڑی سے کہ تو کیسے بولنے لگی, تیرے اندر بولنے کی چھمتا کہاں سے آ گئی. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء, انسان کی چمڑی کہے گی اے انسان, اے انسان, میں اس لیے بول رہی ہوں کہ آج اللہ نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے, اور میں ایک ایک بول تیرے کھولوں گی, ایک ایک راز تیرے کھولوں. ذرا سوچو میرے پیارے ساتھی, اس دن کون ہمارے کام آئے گا؟ کیا ہمارا باپ ہمارے کام آ جائے گا؟ ہم اسی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بیٹا پریشان ہو جائے تو باپ کام آتا ہے. ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں, مرکزی جمعیت کے ناظم اعلیٰ ہیں مولانا ہارون سنابلی, ان کی, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, شاید ان کی کڈنی کا معاملہ تھا, ان کی کڈنی خراب ہو گئی تھی, ان کے بیٹے نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کی, بیٹے نے کڈنی دی, اور آج الحمدللہ مولانا صحت مند ہے. باپ بیمار ہے, باپ پریشان ہے, بیٹا اپنے باپ کو بچا رہا ہے. کہیں اس کا الٹا بھی ہوتا ہے, بیٹا پریشان ہے تو باپ اپنا خون دے کر کے بیٹے کو بچا لیتا ہے. کہیں ماں تکلیف میں تو بیٹی بچا لیتے ہیں, کہیں بیٹے تکلیف میں تو مائیں بچا لیتی ہیں. او میری پیاری ماں بہنوں, کل قیامت کے دن یہ رشتے ناطے کام نہیں آئیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, انسان اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا, اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا, اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا, اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا. کیوں بھاگے گا؟ اس لیے بھاگے گا کہیں میری ماں مجھ سے میری نیکی نہ مانگ لے, کہیں میری بیوی مجھ سے میری نمازیں نہ مانگ لے, کہیں میرا باپ مجھ سے میری نیکی نہ مانگ لے, کہیں بھائی کے گناہ میرے اوپر نہ لاد دیے جائیں. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, اس دن بھائی بھائی کا پرسان حال نہ ہوگا, باپ بیٹے کا پرسان حال نہ ہوگا, ماں اپنے بچوں کی حال چال نہیں پوچھے گی. اس دن میرے پیارے ساتھیو ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی جو آیت پڑھی, تیسرے بقرہ کی آیت ہے, تیسرے پارے کی, یہ اللہ کے نبی کے اوپر اترنے والی آخری آیت تھی. اس آیت کے اترنے کے 9 دن کے بعد اللہ کے پیارے نبی کا انتقال ہو گیا. آخری آیت
जो अल्लाह के नबी के ऊपर उतरी है। जरा गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, उस आखिरी आयत में अल्लाह ने क्या मैसेज दिया है, वो गौर करने के लायक है। फरमाया वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, ऐ मेरे बंदो उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे, जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, और उस दिन हर नफ्स को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा। अल्लाह की अदालत में इंसाफ होगा और पूरा पूरा इंसाफ होगा। वहां किसी जालिम को वो मोहलत नहीं मिलेगी। दुनिया में जालिम जुल्म जितना चाहे कर ले, दुनिया में अल्लाह मोहलत दे देगा, मगर वहां मोहलत नहीं मिलने वाली है। सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, उस दिन हर नफ्स को उसके अमल का पूरा पूरा बदला। और यही बात अल्लाह कुरान के 18वें पारे में कहता है, फरमाया वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। व इन काना मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, एक राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई अच्छा अमल किया होगा, तुमने कोई बुरा अमल किया होगा, वो तुम्हारे तराजू पर सामने आ जाएगा। वकफ़ा बिना हासिबीन, और मेरे बंदो जब हम हिसाब लेंगे तो पूरा पूरा हिसाब लेंगे। हम लोग सब्जी वाले क्या, जब सब्जी लेने जाते हैं ना, तो सब्जी वाला जब एक एक सब्जी को बहुत तौल तौल के देता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्या भैया सोना तोल रहे हो क्या? सोना तोल के दे रहे हो? क्या मतलब? सोना बड़ा कीमती है। सोना जब कोई तौल के देगा तो जाहिर है कि वो 1 ग्राम तो छोड़ दो, 1 मिलीग्राम का भी फर्क नहीं करेगा, क्योंकि सोना बड़ा कीमती होता है। औरतें, हमारी माए बहनें नाक की नथिया लेने जाती हैं वहां सोनार के यहाँ, ज्वेलर के यहाँ, तो उसके पास जो तराजू होता है, जो स्केल होता है, वो नाक की नथिया बहुत हल्की होती है, उसको भी वो तराजू में रख के बता देता है, मैडम इसका इतना वजन है, ये 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, इसका इतना वजन है, इतनी कीमत है। तो सोनार का तराजू इस दुनिया का सबसे कीमती तराजू माना जाता है, मगर अल्लाह का तराजू मेरे प्यारे साथियों सोनार के तराजू से भी बड़ा और अजीम होगा। अल्लाह के तराजू पर एक राई के दाने के बराबर भी कोई अमल हम करके बच नहीं पाएंगे। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं और आकर के कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, मेरे कुछ गुलाम हैं, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, मैं कभी कभी मार भी देता हूँ, सजा दे देता हूँ। अय अल्लाह के नबी, क्या उसका हिसाब मुझे अल्लाह क्या देना पड़ेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, आप अपने गुलामों को जो सजा देते हैं, अगर आपकी सजा उनके अपराध से बड़ी है, सजा ज्यादा है और उनका अपराध छोटा है, तो फिर आपको अपनी नेकियों से हाथ धोना पड़ेगा। और अगर आपकी सजा छोटी है और गुलामों की जो गुनाह है वो ज्यादा बड़ा है, तो फिर ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आपकी नेकी बढ़ जाएगी, आपकी सजा को भी तौला जाएगा और गुलामों की नाफरमानी को भी तौला जाएगा। साहबी एक कोने में जाके ज़ारो कतार रोने लगे, दहाड़े मार मार के रोने लगे और कहने लगे, अय अल्लाह के नबी, इतना बड़ा खतरा मैं कैसे मोल ले लूं? अय अल्लाह के नबी, मैंने गुलामों को जो सजा दी है, मैंने जो मारा है, जो डांटा है, मैंने नाप करके तो सजा नहीं दी, मैंने तौल करके तो सजा नहीं दी। अय अल्लाह के नबी, आप कह रहे अगर मेरी सजा ज्यादा है और उनकी नाफरमानी कम है, तो मुझे अल्लाह का हिसाब देना पड़ेगा, मुझे अपनी नेकियों से हाथ धोना पड़ेगा। अय अल्लाह के नबी, इतना बड़ा खतरा मैं कैसे मोल ले सकता हूँ? नबी अकरम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, कि आपने नहीं सुना, कि आपने कुरान की आयत नहीं सुनी, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, ऐ मेरे बंदो, हम कयामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे, फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। व इन काना मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, और एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी तो वो सामने आ जाएगी। ऐ मेरे साहबी, अल्लाह ने फैसला कर दिया है, आपको एक एक राई के दाने के बराबर चीजों का हिसाब देना पड़ेगा। आपने अपने गुलामों को जो सजा दी है उसका हिसाब देना पड़ेगा।
सहाबी ने रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अगर ऐसी बात है तो फिर आप भी सुन लीजिए, मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। इन्नी उश्हिदुकुम अला अन्नहुम अहरार, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं सबको गवाह बना के कहता हूँ, मैं सारे गुलामों को आजाद कर रहा हूँ, उनको अपनी गुलामी से निकाल रहा हूँ, आज से वो मेरे गुलाम नहीं रहेंगे, मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। मेरे प्यारे साथियों, आज हमें और आपको वो जो ट्रक के पीछे जो लाइन लिखी थी, जरा सोच कर देखो साथ क्या जाएगा। हमें वो लाइन अपने ज़हनों में बिठाने की जरूरत है कि आज वाकई में न हमारे बच्चे हमारे साथ जाएंगे, न माल हमारे साथ जाएगा। हाँ, अगर जाएगा तो आपका नेक अमल आपके साथ जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानु इनक़ताअन अमलुहु इल्ला मिन सलासा, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो सारे अमल का रजिस्टर बंद हो जाता है, लेकिन 3 चीजों का सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है। सदक़तिन जारियतिन, ऐसा सदका करके गया हो जो उसके मरने के बाद भी जारी हो। कोई बच्चों के पढ़ने के लिए कमरा बनवा दिया, कोई मस्जिद बनवा दी, कोई कुआं खुदवा दिया, कोई ऐसा सदका करके गया जो उसके मरने के बाद भी कंटिन्यू है, जारी है। ऐसा सदका मरने वाले को उसके मरने के बाद भी फायदा पहुंचाता रहेगा। दूसरी चीज, और इल्मिन युंतफउ बिही, कोई ऐसा इल्म का काम छोड़ के गया हो कि उसके मरने के बाद भी लोग उससे फायदा उठाते हो। कोई किताब लिख करके गया हो, जब तक वो किताब पढ़ी जाती रहेगी उसको सवाब मिलता रहेगा। इमाम बुखारी को दुनिया में आए हुए 1000 साल के ऊपर दुनिया से गए हुए हो चुके हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आज भी हर मदरसे में सही बुखारी पढ़ी जाती है और कुरान के बाद सबसे सही किताब का दर्जा इसी किताब को हासिल है। जब तक सही बुखारी पढ़ी जाती रहेगी, उसको जमा करने वाले, उसको लिखने वाले इमाम बुखारी को उसका सवाब मिलता रहेगा। तो ऐसा कोई इल्म का काम इंसान छोड़ के जाए कि मरने के बाद भी वो काम जारी रहे। और तीसरी चीज क्या है, अव्वलदिन सालिहिन यदूलहु, ऐसी कोई औलाद छोड़ करके जाए जो नेक औलाद हो, जो मरने वाले के लिए दुआ करे। मेरे प्यारे साथियों, अगर अल्लाह ने आपको साहिब औलाद बनाया है, अपनी औलाद को नेक बनाओ। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अपने अगर आपको अल्लाह ने बेटे और बेटियां दी हैं तो उनकी तरबियत और उनकी तालीम की फिक्र करो, उनको नेक बनाओ। ऐसी औलाद छोड़ के जाओ कि आपके मरने के बाद वो औलाद दुआ कर सके, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब तो स्कूलों में बच्चियां डांस कर रही हैं, और अब ऐसे स्कूल जो स्कूल बड़े इस्लामी स्कूल माने जाते हैं, अब वहां पर डांस अगर बोलेंगे तो डांस पर तो सब लोग एतराज करेगा, तो डांस का नाम बदल करके उन्होंने एक्शन रख दिया है। अब छोटी बड़ी बच्चियां, वो कोई गीत बज रहा है, कोई म्यूजिक के साथ कोई नज्म बज रही है, कोई कव्वाली बज रही है, और लड़कियां जो है वो हाथ हिला रही है, पैर हिला रही है। और साहब ये मुबारक हो गया, ये जब तक डांस था तो वो हराम था, जब इसका नाम एक्शन पड़ गया तो ये हलाल हो गया। हाय 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 हाय, ये हमें गौर करने की जरूरत है कि आज तालीम के नाम पर स्कूलों में और तालीम गाहों में हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। कहीं उनका अकीदा बर्बाद हो रहा है, कहीं उनका अखलाक बर्बाद हो रहा है, कहीं जवान जवान लड़कियों को बेहया बनाया जा रहा है, और उसका अंजाम ये है, उसका नतीजा ये है कि इसी मुल्क में ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि सगे भाई और सगी बहन में भी ज़िना हो रहा है, और इसी मुल्क में ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि 4-4 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये हालात क्यों हैं? इंसान अंधा हो चुका है, इंसान मजहब से दूर है, इंसान दीन से दूर है। उसके लिए औरत को ऐसा परोस करके पेश किया गया है कि उसके लिए औरत सिर्फ अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील का एक जरिया है, एक मशीन है, एक शहवत पूरी करने का आला है। औरत की कोई हैसियत उसकी नजर में नहीं है। आओ मेरी प्यारी माँ और बहनों, इस्लाम आपको आपकी हैसियत देता है। इस्लाम की नजर में आप कोई खिलौना नहीं है जिससे कोई खेल के चला जाए। इस्लाम की नजर में आप कोई शौक पूरी करने वाली मशीन नहीं है। इस्लाम की नजर में अगर आप माँ हैं तो आपके कदमों के नीचे जन्नत है। अगर आप बेटी हैं तो माँ बाप को जहन्नम से बचाने का जरिया है। अगर आप बीवी हैं तो शौहर की जिंदगी में सुकून की बहार लाने वाली मलका है। अगर आप बहन हैं तो अपने भाई का दस्तो बाजू हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अपने मकाम को समझो, इस्लामी पर्दे को अपनाओ, इस्लामी शर्म हया को अपनाओ, और अपने घरों में
शर्म और हया का माहौल पैदा करो। कभी आपने गौर किया नबी अकरम ने क्यों फरमाया जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके बिस्तर अलग कर दो। बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो पिटाई करो और उसका बिस्तर अलग कर दो। 10 साल का बच्चा आमतौर से बालिग नहीं होता है, 10 साल की बच्ची आमतौर से बालिग नहीं होती है, मगर ये इस्लाम है, ये अल्लाह का दीन है जो हमें ये सिखा रहा है। लड़का 10 साल का हो गया, लड़की 10 साल की हो गई, अब एक बिस्तर पे न सुलाओ, एक चादर में न सुलाओ, अब अलग कर दो, ताकि अभी से उनको समझ में आने लगे कि हाँ अब हमें अलग अलग सोना है, ताकि उनके ज़हन और दिमाग में किसी किस्म की गंदगी ना आने पाए। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको यही मैसेज आज देना चाहता हूं कि आप ये जिंदगी का एक स्लोगन बना ले, एक नारा बना लें कि हम गौर करें कि हमारे साथ क्या जाने वाला है। न ये माल साथ जाएगा, न ये औलाद साथ जाएगी, अगर जाएगा तो अल्लाह का तकवा जाएगा, अल्लाह का डर जाएगा और नेक अमल जाएंगे। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम बेशक इंसान घाटे में है, सिवाय उन लोगों के इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जिन्होंने जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किया। अच्छा, अल्लाह ने जमाने की कसम क्यों खाई? सलफ में से एक साहब कहते हैं मैंने एक आदमी को देखा वो बर्फ बेच रहा है, और बर्फ बेच रहा है और जैसे जैसे दिन चल रहा है उसका बर्फ पिघल रहा है, और जैसे जैसे बर्फ पिघल रहा है वो रो रहा है और चिल्ला रहा है और कह रहा है ओ लोगों, मेरी पूंजी पिघल रही है, मेरा कैपिटल जा रहा है, इसके पहले कि मेरा कैपिटल चला जाए ओ लोगों मेरा बर्फ खरीद लो। पता ये चला कि जिंदगी भी बर्फ की तरह पिघलती चली जा रही है। कोई नया साल मना रहा है, कोई बर्थडे मना रहा है, कोई एनिवर्सरी मना रहा है, मगर इंसान ये भूल रहा है कि जैसे जैसे वो जिंदगी में आगे बढ़ रहा है उसकी जिंदगी बर्फ की तरह पिघल रही है, और एक दिन आएगा जब ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा और आप दुनिया के लिए बस एक याद रह जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, कोशिश करो कि दुनिया वाले आपके मरने के बाद आपको अच्छे नाम से याद करें, अच्छे लक़ब से याद करें। शायर कहता है कि मौत उसकी हुई जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, जिंदगी को इतना अच्छा बनाओ कि मरने के बाद लोग आपकी तारीफें करें। अल्लाह के नबी के सामने से एक जनाजा गुजरा, नबी ने कहा ये जनाजा जो जा रहा है या तो ये जनाजा राहत दे गया, मुस्तरीहुन व मुस्तराहुम मिन्हु, या तो ये राहत पा गया या ये राहत दे गया। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी क्या मतलब? आपने कहा जब मोमिन का जनाजा उठता है, जब नेक इंसान का जनाजा उठता है तो नेक इंसान दुनिया की तकलीफों से, दुनिया की टेंशन से, दुनिया के गम से राहत पा जाता है। और जब फासिक और फाजिर का इंतकाल होता है, जब जालिम मरता है, जब काफिर मरता है, जब अल्लाह का इनकार करने वाला मरता है, तो जमीन सुकून की सांस लेती है, आसमान राहत की सांस लेता है, चरिंदे परिंद सुकून की सांस लेते हैं और सब सब चैन की सांस लेते। चलो खस कम जहां पाक, दुनिया से एक मुसीबत टली, एक बुरा आदमी दुनिया से गया। तो मेरे प्यारे साथियों, जिंदगी को ऐसा बनाओ आपकी जात के जरिए दूसरों का फायदा पहुंचे। नबी अकरम ने फरमाया, आखिरी हदीस सुना के बाद खत्म कर रहा हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुन नास अनफउहुम लिन्नास, लोगों में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाए। अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपकी जात के जरिए लोगों को फायदा पहुंचे। जरूरी नहीं कि आप आलिम बनो, आप मुकर्रिर बनो, आप उस्ताद बनो, आप किसी भी फील्ड में, आप ताजिर बन के भी ये काम कर सकते हैं, बिजनेसमैन बन करके भी ये काम कर सकते हैं। कोशिश ये करो कि हमारी जात के जरिए दूसरों को फायदा पहुंचे, अपनी जात के जरिए दूसरों को नुकसान मत करो। मेरे प्यारे साथियों, मैं इन्हीं कलमात पर इक्तफा करता हूं क्योंकि अभी मुझे फौरन निकलना है और 250 किलोमीटर का सफर तय करके गया जाना है। 5 घंटे का सफर है और 5 बजे वहां ट्रेन है, उसको मेकअप करके हमें 4 घंटे में लाना है। वो ड्राइवर साहब को मैं सैल्यूट करता हूं कि वो बेचारे मेहनत करके हमारे साथ जाते हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ भी करें और हम सब ये, आप भी अपनी दुआओं में मुझको याद रखें कि अल्लाह हमारा सफर आसान करे। रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन आज का ये प्रोग्राम जिस मकसद के लिए मुनक़िद हुआ है, लोगों की इस्लाह के लिए और मदरसे की तामीर और तरक्की के लिए, और मदरसे में तालिबात आए और तालीम हासिल करें और लोगों के अंदर तालीम का रुझान पैदा हो, अल्लाह इस मकसद पर हम सबको खरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ला युज़लमून। सदर मोहतरम
علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، شیخ حفاظت اللہ سلفی حفظہ اللہ اور ان کے صاحبزادے شیخ امان اللہ ریاضی کی دعوت پر آج کے اس اجلاس عام میں شرکت کرنے کا موقع مجھے نصیب ہو رہا ہے۔ کل رات میں میرا پروگرام پاکڑ میں تھا اور میں بنارس سے تقریباً 700 کلومیٹر کا سفر طے کر کے کار سے پاکڑ آیا اور آپ کے اسی مدھو پور اور دیوگھر اور گریڈی ہوتے ہوئے میں بنارس واپس گیا، کیونکہ مجھے صبح کلاس جوائن کرنی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا، روڈ بہت خراب تھا اور میں وقت پر بنارس نہیں پہنچ پایا اور طبیعت اتنی تھکی ہوئی تھی، 1400 کلومیٹر کا سفر مسلسل کار میں بیٹھنا، وہ بھی پوری رات میں جگا ہوا تھا، سر بہت تیز درد کر رہا تھا اور یہاں جلسے کے منتظمین کی طرف سے بالخصوص ہمارے شیخ حفاظت اللہ صاحب کی طرف سے، ان کے صاحبزادے کی طرف سے بار بار کال بھی آ رہا تھا کہ ہمارے یہاں عوام آپ کے منتظر ہے، آپ کو آنا ہی ہوگا۔ پھر اللہ کا نام لے کر کے میں مشکل سے گھر میں 2 گھنٹہ میں نے آرام کیا اور پھر اللہ کا نام لے کر کے میں نکلا اور پٹنہ ہوتے ہوئے کار سے میں آپ کے بیچ میں پہنچا اور تقریباً 11:30 11:40 پر میں آپ کے بیچ میں پہنچا ہوں اور ابھی مجھے تقریر کر کے فوراً نکلنا ہے اور یہاں سے گیا جا کر کے وہاں مجھے ٹرین پکڑنی ہے، صبح 5 بجے ٹرین ہے جو مجھے بنارس پہنچائے گی تاکہ میں کلاس میں ٹائم تک پہنچ سکوں۔ میرے بھائیوں، آج کے اس پروگرام میں آپ نے مختلف علماء کے خطابات سنے ہیں۔ شیخ حفاظت اللہ صاحب ابھی مجھ سے پہلے خطاب کر رہے تھے، ان کے پہلے بھی آپ نے شیخ پیغام عمری صاحب بھی یہاں موجود ہیں اور دیگر علماء بھی موجود ہیں، آپ نے ان کے خطابات سنے ہوں۔ میں تھوڑا پس و پیش میں تھا کہ آج کس موضوع پر آپ کے سامنے بات